ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. عمران خان کی سائفر سے متعلق مبینہ آڈیو کا دوسرا حصہ پارٹ 2 سے سازشی کہانی کا ایک بار پھر بھانڈا پھوٹ گیا. آڈیو لیک میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان محو گفتگو. عمران خان کی امریکہ کا نام نہ لینے کی بار بار ہدایت. کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہیں سننا چاہتا. ایک اور فورن سیکریٹری نے میٹنگ کرنی ہے. وہ جو لیٹر ہے اس کے چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں. کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. مبینہ آڈیو میں سائفر سے متعلق عمران خان کی ہدایت. آڈیو لیکس نے عمران خان نیازی کے جھوٹے بیانیوں اور موجودہ حکومت کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے. قوم کے سامنے حقیقت یہ ہے، ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا، لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. عوام سچ اور جھوٹ، خدمت اور فراڈ، ریاکاری اور سچائی میں تفریق کریں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. عمران خان کی امریکی سائفر سے متعلق آڈیو لیک کے معاملے پر پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کس نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر غداری کی اور ملک کو بین الاقوامی سطح پر تنہائی سے دوچار کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ میں مطالبہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک اور تحفہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارا گہو بائی پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 5.4 کلومیٹر طویل منصوبے کو 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کا ہدف. 1350 میٹر طویل اوور ہیڈ برج بنایا جائے گا. دونوں اطراف 3 رویہ سڑکیں بنائی جائیں گی. منصوبے سے ٹریفک کا رش ختم ہوگا. مری اور آزاد کشمیر جانے والے مسافروں کو سہولت ملے گی. تحریک انصاف کی حکومت میں میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں. سابق دور میڈیا کے لیے سیاہ ترین دور تھا. حکومت میڈیا کی آزادی پر کامل یقین رکھتی ہے. حکومت مری کے صحافیوں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی مری پریس کلب کے وفد سے گفتگو. اور پاکستان سیریز اپنے نام کرے گا یا انگلش ٹیم کم بیک کرے گی. 6 T20 میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے. مقابلہ شام 7:30 بجے سے PTV سپورٹس HD پر دیکھیے براہ راست. 7 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 3-2 کی برتری حاصل. السلام علیکم ناظرین، نیوز شو 86 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں سلمان کوثر. ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. اس آڈیو میں عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی گفتگو سنائی دے رہی ہے. اس خط کو فوٹو سٹیٹ کروا کر رکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری نے. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بنائیں نہیں، اس میں فوٹو اسٹیٹ میٹنگ 7 کو ہوئی ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز
किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने रफ़का के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपने मुलाहिज़ा की, और इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए। दूसरा पार्ट सामने आया, इससे कबल पहले पार्ट पर बात हो रही थी और अभी वो बातचीत ख़त्म नहीं हुई थी, और अब ये दूसरा पार्ट सामने आ गया है और उसमें नाम ना लेने की बार बार हिदायत की जा रही है। एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच है मुल्क की सालमियत के हवाले से, और सबसे बढ़कर ये कि गुफ्तगू तब हो रही थी वज़ीर आज़म हाउस में जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उस्मा के मनसब पर फायज थे। कितनी बड़ी साजिश हो सकती है ये पाकिस्तान के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस है कि अगर मुल्क के इस हाईएस्ट लेवल से इस किस्म की साजिशें बुनी जाएं और उनके ताने बाने एक इंटरनेशनल साजिश के साथ जोड़ के पूरे मुल्क को एक मुश्किल में, तकलीफ में डाल दिया जाए, और फिर सैलाब की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद अपनी ढटाई को जारी रखा जाए, मेरे ख्याल है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो बनती है वो है आजम खान साहब के ऊपर। आजम खान साहब जो हैं वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि तमाम जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनके हेड के तौर पर समझे जाते हैं, और उनके खिलाफ बकायदा ये एक ब्रीच ऑफ, जिसको कहते हैं कि उनका जो ओथ है जो उन्होंने लिया हुआ था रियासत पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जो रियासत के खिलाफ एक काम किया जा रहा है, और उसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो एक आला कार बन रहे हैं। दूसरी बात है साइफर के जरिए। साइफर एक फैक्स जैसा एक लेटर होता है जो जिसकी आप कॉपीज और इस तरह से चीजें नहीं होती, उनके ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ जाता है और वो खुद ही खत्म हो जाता है एक थोड़े अरसे के अंदर। इसीलिए उसका फोटो कॉपी कहा जा रहा है कि आप फोटो कॉपी जो है वो करवा के रख लें और फिर इसको एक साजिश के जरिए जोड़ लें। इससे पहले जो इमरान खान साहब की अहलियां हैं बुशरा साहिबा, उनके हवाले से बकायदा आया कि इसको जो है वो इन अफराद को मगरबी साजिश के साथ जोड़ दो, जो कि वो अपनी सोशल मीडिया के टीम के जो हेड हैं उनको हदायत कर रही हैं। फिर इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी जो हैं और असद उमर साहब जो हैं, वो कौन नहीं जानता कि जाहिर है एक बड़े सीनियर एक फॉरेन मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के कई बार, और असद उमर साहब जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे। असद उमर साहब वही आदमी हैं जो शुरू में जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आए तो उनको एक मैजिक बॉय के तौर पर पेश किया गया, लेकिन वो मैजिक उल्टा हो गया, वो ब्लैक मैजिक हो गया। वो पाकिस्तान के ऊपर उसने ऐसी माशी जो मेरे ख्याल में अदम इस्तेहकाम की तरफ ले गया कि आज तक पाकिस्तान जो है वो गिरावट का शिकार है। हमारा डॉलर देखें 191 पे, मुझे याद है कि जिस दिन हुकूमत पिछली का खात्मा हुआ तो 191 पे डॉलर था। और अभी भी हमने देखा कि जो इससे पहले एक ऑडियो लीक आई जिसके अंदर शौकत तरीन जो कि वजीर खजाना रहे, और वो किस तरीके से वजीर खजाना जो केपी के हैं और इसी तरीके से पंजाब के जो हैं उनको हदायत कर रहे हैं कि आप जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से जो उनकी किस्त आने वाली है आप एक ऐसा काम करें कि वो किस्त ना आ सके। ये तो सरासर मुल्क दुश्मनी है। मेरा ख्याल है इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई। ठीक है, सियासत अपनी जगह करनी है, खान साहब जरूर करें, लेकिन मुल्क की रियासत को जो है वो स्टेक पे लगा के, दाव पे लगा के ये काम जो है किसी सूरत मुमकिन नहीं होना चाहिए। आपके इख्तलाफ राय हो सकते हैं, मेरा मौजूदा हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय कई बातों के ऊपर है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं मन घड़त जो बातें हैं वो अपने तौर पर मंसूब कर लूं और वो इस मुकाम के ऊपर ले जाऊं कि पूरा पाकिस्तानी एक अजीब हैजानी कैफियत में मुब्तला हो गया। तमाम नौजवान नस्ल का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। सड़कों के ऊपर लोग इस टाइम पे फिर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, जबकि मुल्क डूब गया हुआ है। 30 बिलियन और इनको कोई परवाह नहीं है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, जाती मफादात को मुकद्दम रखने का नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक शख्स ने वज़ीर आज़म होते हुए ना सिर्फ ओहदे का गलत इस्तेमाल किया बल्कि इस ओहदे का तकद्दुस पामाल किया। इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आने वाले वक्त में, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं खासतौर पर PTI की सियासत पे? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए हैं।
यानी कि इसकी जो एक बाकायदा रियासत पाकिस्तान है और उसके जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके ऊपर सर्टन एक लाइबिलिटीज हैं, सर्टन उनके ऊपर एक कवानीन नाफिज होते हैं, जिसके अंदर कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के एटमी एक मुल्क है, पाकिस्तान के तो एटमी हवाले से जो है वो गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो है वो बात शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको मजीद आगे ले जाया जा सकता है। इससे पहले बतौर वजीर आजम पाकिस्तान उन्होंने बाकायदा ISI को मोरद इल्जाम ठहराया ईरान के हवाले से। इसी तरीके से उन्होंने अमेरिका के एक थिंक टैंक को जो है बाकायदा ये अपना इंटरव्यू दिया और वहां जाके उन्होंने ये गुफ्तगू की कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो गजब खुदा का के मतलब वो दहशत गर्दी को परवान चढ़ाते हैं। ये किस किस्म की मेरे ख्याल में जो तिफलाना गुफ्तगू, आप एक दफा स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं लेकिन दो दफा स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, एक दफा जबान फिसलती है, दो दफा नहीं फिसल सकती। अब इसके जो दूसरे आपने कॉन्सिक्वेंसेस कहे कि जी इसके जो पार्टी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, देखें जहां तक पार्टी के अंदर जाहिर है अच्छे भी मौजूद होते हैं, हुब्बुल वतन लोग हैं, PTI के अंदर भी मौजूद हैं और यकीन मानिए कि इमरान खान साहब की इन पॉलिसियों से वो नाला हैं, मुझे मालूम है, मैं उनके नाम जानता हूं और वो मेरे से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि इस बात के ऊपर जहाँ रियासत का दाव पे लगाया जा रहा है, रियासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या PTI के वो मेंबरान उनके साथ इस मिशन में साथ रहेंगे? दूसरी बात, उन तमाम अफराद का भी अब उनकी भी जिम्मेदारी है जो कि PTI का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो इन तमाम पॉलिसीज से इत्तेफाक नहीं करते और वो इख्तलाफ करते हैं और अब इख्तलाफ का इजहार भी उन्हें खुल कर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप सीनियर तज्जियाकार और ऑडियो लीक्स पार्ट 2 पर आप PTV न्यूज से बात कर रहे थे। इसी मामले पर हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बात करने के लिए अहमद जवाद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और अहमद जवाद साहब आपके सामने है सारा मामला। बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज को वक्त दिया। सर, एक और ऑडियो सामने आई है, मुबैना साइफर जो था उससे मुतालिक एक और ऑडियो हम देख रहे हैं जिसमें मुल्क के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। न सिर्फ खारजा ताल्लुकात को दाव पर लगाया जा रहा है बल्कि मुल्की मफादात को दाव पर लगाया जा रहा है, वज़ीर आज़म के ओहदे का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल क्या वाज़े करती है, मकासद क्या है इमरान खान साहब के? देखें, इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आपने कहा मुल्की सालमियत का एस्पेक्ट है जो कि सबसे बड़ा है और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो लीक के आने से इस बात का तो हमें एहसास हो जाना चाहिए कि इमरान खान जिस पोजीशन पे उनको बिठाया गया था वो इसके अहल नहीं थे, क्योंकि उस पोजीशन पे बैठ के मुल्की सालमियत के हवाले से सबसे ज़्यादा तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म को एहसास होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं और हमें अपनी सियासी जो हमारा एजेंडा होता है या सियासी जो हमारे मकासद होते हैं उनसे बियॉन्ड जाके उनसे ऊपर होकर सोचना पड़ता है। मुल्क के कौमी मुफाद को सामने रख के सोचना होता है, अपनी अना को पीछे करना होता है, अपनी सियासी अज़ाइम को पीछे करना होता है और सिर्फ ये सोचना होता है कि इसमें मुल्क का मुफाद किस चीज़ में है। तो ये गुफ्तगू सुन के एक तो हमें इस बात का एहसास होता है कि कितने अफसोस की बात है कि इस हाई पोजीशन पे बैठ के आप एक सबसे बड़े जगह पे बैठ के एक साजिश कर रहे हैं, एक मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब इस गुफ्तगू में हम ये सुनते हैं कि असद उमर साहब कहते हैं कि ये एक लेटर है, तो वो खान साहब कहते हैं कि अवाम को क्या समझ आनी है कि ये लेटर है या क्या है, आप लेटर का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और फिर वही लेटर का लफ्ज़ जो है वो अवामी जलसों में इस्तेमाल किया गया, उसको एक पॉलिटिकल रिटोरिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये इसका एस्पेक्ट है जो एक मुल्क की सालमियत के हवाले से है, एक लीडरशिप की जिम्मेदारी के हवाले से है। लेकिन एक एस्पेक्ट और भी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये ऑडियो लीक का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से भी ऑडियो लीक सामने आई और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो हैं ऑडियो वीडियो सामने आई हैं,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر ہم ایک انڈیپینڈنٹلی اگر اس کو سوچیں تو یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم مریم نواز اس کے حوالے سے کئی دفعہ اس بات کا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کہ جس میں ہم اس طریقے سے سیاسی جو ایک کشمکش ہے اس کو اس قسم کے ٹرینڈ کے اندر لے جواد صاحب, ایک دوہرا معیار بھی سامنے آتا ہے. ایک طرف اسی گفتگو میں ہم سنتے ہیں کہ ملک کا نام نہ لینے کے پر بار بار ایمفیسس کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم, اور جلسوں میں جب آتے ہیں تو وہ واپس پلٹ کر اگر کوئی کال آتی ہے یا پھر کسی سے نہ ڈرنے کے حوالے سے تلقین کی جاتی ہے. یہ کتنا بڑا ڈرا بیک ہے اور لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ جانی چاہیے کہ کال و فیل میں کتنا بڑا تضاد ہے. دیکھیں یہ پوائنٹ بالکل میں نے جیسے اپنی گفتگو میں نے یہ بات کہی بھی کہ ایک لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں اب ایک لیڈر جب سیاسی جلسوں میں آتا ہے تو وہ ایاک نعبد کا ذکر کرتا ہے, وہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے, قرآن کا ذکر کرتا ہے, ملکی مفاد کا کرتا ہے, غیرت کا ذکر کرتا ہے, عزت کا ذکر کرتا ہے, ایک قوم کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں بڑی اچھی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں جلسے کے اندر جب کہی جاتی ہیں, تو جلسے میں ایک جو ہے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے قوم کے جی کے جو ہے نا اس طریقے سے قوم کو ہونا چاہیے. لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ قول اور فعل میں تضاد, کہ جب آپ کہتے یہ ہیں, یہ آپ کے اقوال ہیں جو کہ آپ سیاسی طور پہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں, ایکچولی میں آپ کا جو ایکشن ہے وہ تو یہ آڈیو لیکس شو کر رہی ہے نا. اس آڈیو لیکس کے اندر تو آپ باقاعدہ ایک سازش کا تانا بانا بن رہے ہیں. آپ اس میں کہہ رہی ہیں کہ اس ملک کا نام نہیں لینا, آپ کہہ رہی ہیں اس کو لیٹر کہنا ہے, عوام کو سمجھ نہیں آتی, آپ اس میں کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے. یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمران خان ایک سپورٹس مین رہے ہیں, تو ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر چیز کو ایک سپورٹس کی طرح لے لیتا ہے یا کھیل کا میدان لے لیتا ہے. پاکستان کھیل کا میدان نہیں ہے, اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ کوئی کھیل کا میدان ہے. یہ کھیل کود جو کرنی ہے آپ اپنے گھروں میں کریں, آپ جا کے کسی اسٹیڈیم میں کریں, لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں یا اس ملک کو کھیل کا میدان مت سمجھیں. تو احمد جواد صاحب, جو ایک غبارہ بنا رکھا تھا جس میں ہوا بھری جا رہی تھی کہ مقبولیت کے سامنے نہ اداروں کے فیصلے تسلیم کیے جائیں گے, جو عوامی رائے کی راہ ہموار ہو رہی ہے, اب عوامی رائے کس طرح بدلے گی, کہ عوام اپنی رائے بدلیں گے, یہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کا ایک اثر تو ہونا چاہیے, اور میں آپ کو ایک جو ٹرم ہم استعمال بھی کرتے ہیں عام طور پہ پولیٹیکل کلٹ کی, پولیٹیکل کلٹ ایک ایسی ایک کیفیت ہے, ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس میں اس کو فالو کرنے والے اندھے ہو جاتے ہیں, گونگے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں. وہ صرف اس ہسٹری میں ہم نے ہٹلر کے ساتھ اس کی جو نازیزم کا جو فلسفہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا. عمران خان کے ساتھ بھی اس کے فالوورز کا جو رشتہ ہے وہ ایک پولیٹیکل کلٹ کا رشتہ ہے. اس کلٹ میں آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی, تمیز کرنے کی صلاحیت آپ کھو دیتے ہیں. آپ کو صرف وہ سیاسی لیڈر نظر ایسا مقام دے دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ جو بھی کہے گا بس وہی سچ ہے. اس کے علاوہ آپ ان کو کچھ بھی دکھا دیں, آپ ان کو کہیں کہ یہ دن کی روشنی ہے, اور اگر ان کا لیڈر کہتا ہے نہیں یہ رات کا اندھیرا ہے, تو کہیں گے ہاں رات کا, وہ دن کی روشنی کو, سورج کی روشنی کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل کلٹ کا جو فلسفہ ہے یا ایک ٹرینڈ ہے, یہ بھی ہمارے کہ ایک آگاہی پیدا کرنا میڈیا کا کام ہے, سیاسی لیڈروں کا کام ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک آگاہی پیدا کریں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ جو قول اور فعل میں تضاد ہے, یہ جو لیڈرشپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس کا احساس نہ ہونا یا ملک کے خلاف اور اس کی سالمیت کے خلاف سازشیں کرنا,
इस चीज को हमें जिम्मेदारी का एहसास ना होना बिलाशुबा एक अलमिया है। अगर आपको एक मनसब दिया गया, आपको उसका एहसास नहीं, इदराक नहीं, और कौम ज़ाहिर अपने लीडर से सीखा करती है। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, बहुत मुदल्लल तज्जिया आपने दिया। इस मामले से मुताल्लिक कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑडियो लीक्स ने इमरान खान नियाज़ी के झूठे बयानिए और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इस जहरीले प्रोपेगेंडे को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। अब कौम के सामने हकीकत आया हो चुकी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगाया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अवाम सच और झूठ, खिदमत और फ्रॉड, रयाकारी और सच्चाई में तफरीक करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी फलाह और तरक्की के मंसूबों की तकमील मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वो इस्लामाबाद में बाराको बाईपास मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस बारे में मोहम्मद मजहर अब्बास ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उनसे जानते हैं तफसील। अवामी फलाह के बड़े मंसूबे का संग बुनियाद रखने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में पहुंचे तो अवाम ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो लीक से इमरान नियाज़ी का चेहरा कौम के सामने आ गया है। इमरान नियाज़ी ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिया, पूरी दुनिया में मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने इदारों को तकसीम और दोस्त मुल्कों को नाराज किया। अपनी 40 साल सियासी जिंदगी में इतना झूठा और गैर जिम्मेदार शख्स नहीं देखा। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाज़ी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 5 महीने जो दिन रात राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ। इमरान नियाज़ी आपने पूरी अपोजिशन को गद्दार कह दिया और कहा कि दूसरे मुल्क से साजबाज की और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। परसों उस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से इमरान खान नियाज़ी का बयानिया सारे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए अवामी मंसूबे इमरान नियाज़ी की हुकूमत में तातुल का शिकार रहे। इमरान नियाज़ी को अवाम के दुख और तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अवामी मंसूबे तब हल होते हैं, तब मुकम्मल होते हैं जब दिल में दर्द हो, दिल में अवाम के लिए मोहब्बत हो, दिल में अवाम के लिए तड़प हो। ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है और फिर अभी एक इंटीग्रेटेड जो मंसूबा ट्रांसपोर्ट का वो इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल होने जा रहा है। उससे हज़ारों लाखों लोगों को उनको सहूलत मिलेगी। ये वो काम हैं जो कि पिछली हुकूमत को जो उनकी नाक के नीचे थे उनको मुकम्मल करने चाहिए थे। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, उनको आवाम की जो मुश्किलात, आवाम के दुख दर्द और आवाम की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं था। वज़ीर आज़म ने बाराको बाईपास मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबे का म्यार दीगर मंसूबों के लिए काबिल तकलीद होना चाहिए। 6.5 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इससे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रावलपिंडी के अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा, वक्त बचेगा। ये एक बहुत बड़ी एक अवामी खिदमत है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। 3 माह में मुकम्मल जब होगा तो यकीनन NLC को इसकी बहुत तासीन मिलेगी। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया कि बाराको बाईपास सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में इस्लामाबाद में फीडर बसों का आगाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में CDA के तहत दीगर मंसूबों पर भी काम तकमील के मराहिल में है। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाराको बाईपास का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफ भी किया गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और सेनेट इजलास की बात करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारुर ने मुतालबा किया है कि इमरान खान के अमरीकी साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक के मामले पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो जाए कि किसने अपने ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क से गद्दारी करके इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर तन्हाई से दो चार किया है। उन्होंने ये बात सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कही। सेनेट इजलास में बैन अल-अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम के बिल 2022 समेत 3 बिल्स की मंजूरी भी दी गई। तफसील से आगाह करेंगे अरसलान असद।
चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में अपोजिशन की तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने जिन बेगुनाह सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाला, अदालतों से अब उन्हें इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 56 पेशियों के बाद मरियम नवाज अदालत से सुरखरू हुई। इससे पहले एहसन इकबाल को भी अदालत ने बाइज्जत बरी किया। इनका अमरीकी साजिश के बयानिए का भांडा फूट गया। इनके कायदे मोहतरम फरमा रहे हैं, खेलो, इस पे खेलो, पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलो, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करो, पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करो, लेकिन मेरी सियासत कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, मेरी हुकूमत नहीं जानी चाहिए। इमरान खान के इस ऑडियो लीक के ऊपर बहस होनी चाहिए, इस पे खुल के बात होनी चाहिए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान का दोस्त कौन है, पाकिस्तान का गद्दार कौन है। इससे पहले सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर वसीम शहजाद ने हालिया सैलाब और महंगाई से मुतालिक अपोजिशन की तहरीक पर इज़हार ख्याल किया। वक्फे सवालात में मुल्क में एयरपोर्ट्स की हालत इज़ार बेहतर बनाने और PIA को खसारे से निकालने से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात के जवाब में हवाबाजी के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने अवान को बताया कि PIA कई बरसों से खसारे में है। अगर पॉलिसियों का तसलसल रहा तो इदारे को खसारे से निकालना मुमकिन है। ये हम सबका एक मुश्तरका दर्द है। हम सब चाहते हैं कि PIA बंद ना हो, इसको रिफॉर्म्स चाहिए और हुकूमतें आती जाती रहें, लेकिन जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसके अंदर कोई तगैयर और कोई तबद्दल नहीं आना चाहिए। हम बड़ी सीरियस एफर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद महीने के अंदर आपको पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी तब्दीली नजर आनी शुरू होगी। एक सवाल पर वफाकी वजीर ने बताया कि DI खान और सक्खर के एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं। सेनेट इजलास में 3 कानूनी बिल्स की मंजूरी भी दी गई। इनमें बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम का बिल 2022, पाकिस्तानी कवानीन इशात तरमीमी बिल 2022 और डिप्लोमेटिक और कौंसलर अफसरान एक्ट 1948 में मजीद तरामीम से मुताल्लिक बिल शामिल है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में MTI एक्ट के खात्मे से मुताल्लिक सेहत कायमा कमेटी की चेयरमैन समेत मुख्तलिफ कायमा कमेटी के चेयरमैनों ने अपनी रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की। सेनेट इजलास अब पीर के रोज सपहर 4 बजे होगा। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-ऐवान नामज़द किया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने सेनेटर इसहाक डार को कायदे-ए-ऐवान मुंतखब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। पाकिस्तान जापान तिजारत और सरमायाकारी सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उनका कहना है कि जापानी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। IT, ज़राअत, हाउसिंग, सियाहत, ई-कॉमर्स, सेहत, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और दूसरे शोबों में जापानी सरमायाकार फ़ायदा उठाएँ। जापान के नायब वजीर बराए तिजारत और इक्तिसादी उमूर ने कहा कि सेमिनार के इनेकाद से पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। पाकिस्तान में कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जापान तिजारत और सरमायाकारी सेमिनार में शरीक दोनों मुल्कों के मंदूबीन से हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद ने भी गुफ्तगू की है। आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में सेमिनार का इनकाद किया गया। इसमें पाकिस्तान और जापान से बड़ी तादाद में कंपनियों और सरमायाकारों ने शिरकत की। आइए इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ कैसे मुमकिन है। जेट्रो और BOI के दरमियान हुआ है ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का MOU, जिसमें ये जापान की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जो बिज़नेसमैन हैं, उनके जो सरमायाकार हैं, उनके इन्वेस्टर्स आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, और हमारी तरफ ये कहा गया है कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। This kind of the opportunity, which is 70th anniversary of the diplomatic relationship between the two countries, so that many Japanese companies are trying to promote its business in Pakistan from now on. I believe that. अपनी यूथ में पंक्चुअलिटी और हार्ड वर्क, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैंने सीखी हैं, और इन 2 को अडॉप्ट कर लें, एक सिस्टम से चलें तो हमारे पास मौके बहुत हैं। We will need some communication or to each other or to have this kind of event, then the business will
smoothly start. The market point of view, Pakistan is a very big populations, some kind also the several kind of business. I believe there are very big potentialities. So I hope this session is between the two countries, some kind proceed some more for investment in the future. जापान में अगर कारोबार करना है तो उसका एक लफ्ज़ है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपने जो पहली चीज़ बेची अगर उसका 1,00,000वां पीस है तो वो भी वैसे ही होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की बरियत पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हक को फतह नसीब की। उन्होंने ये बात लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि, मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं, सहाफ़ियों के कलम तोड़ा गया और उनके चलते हुए प्रोग्राम्स बंद किए गए। इस्लामाबाद में मरी प्रेस क्लब के वफ़द से मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि साबिक दौर मीडिया के लिए स्याह तरीन दौर था। हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मकामी सहाफ़ी अपने कलम और कैमरे के जरिए पाकिस्तान और बिलखुसूस दुनिया भर में मरी की सियाहती अहमियत को उजागर करते हैं। मुलाकात में मरी की सियाहती अहमियत, मरी प्रेस क्लब और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पूरा मुल्क जानता है शरीफ खानदान के खिलाफ केस झूठे हैं। नायब अफसरान से पूछा जाए कि किसके कहने पर उन्होंने केसेस बनाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। एहतसाब करने वालों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन वो खुद को बालातर समझते हैं। आप ये देख लें कि मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर थी, अदालत की तारीख पीछे करके 2018 में इलेक्शन के दौरान कन्विक्शन हुई और 4 साल के बाद जाके हाई कोर्ट से कल बरियत हुई है। केस के हक़ाइक़ पहले दिन से पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये झूठे केस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। जज को दबाव डालकर फैसले लिए गए, लेकिन 4 साल लग गए इंसाफ मिलने में। ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं जो हमारे मुल्क के हैं, और जब तक हम इनको दुरुस्त नहीं करेंगे, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। मेरे आका मौला सरकार दो जहां की शान यही है कि वो रहमत लिल आलमीन है। दो जहानों के सरापा रहमत और शफकत, उनके दुश्मन भी उनकी सदाकत, अमानत और दयानत के गवाह थे। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद ही हमारे लिए फ़लाह है। हमारी कोशिश है कि हम अपने प्रोग्राम में आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बाबरकत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करें। इसी सिलसिले में आज हमारा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अखलाकियात, और इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर डॉक्टर हबीब आसिम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया। सर, बात हो रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से मुतालिक। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना हम सब के लिए मशअल राह है। कैसी आदात मुबारक थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसा बर्ताव होता था उनका दोस्तों से और इवन मुखालिफिन के साथ भी? शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना, आपके बारे में सोचना, आपकी शख्सियत के बारे में बात करना, ये सब का सब अल्लाह ताला के करम से होता है। इसलिए जो आपने मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सोचा है, हकीकत में अखलाक बंदे की सीरत को कहा जाता है। उसकी शख्सियत के जो भी किरदार जाहिर हो रहे होते हैं उसको कहा जाता है।
اخلاق کسی ایسے عمل کو نہیں کہا جاتا جو زندگی میں چند بار کیا ہو یا مختلف مناسبتوں کی صورت میں وہ کر دیا جائے، بلکہ اخلاق وہ ہوتا ہے جو زندگی کا حصہ بن جائے. جیسے سانس انسان کی زندگی کا حصہ ہے، جیسے خون کی گردش انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو اس اعتبار سے پہلی بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یہ چند دنوں اور چند ہفتوں اور چند ایام کی بات نہیں ہے. یہ زندگی بھر کا ایسا سودا ہے جو ایک مومن اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بناؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اخلاق رسول پہ بات کرتے ہیں تو یہ فجر کے وقت سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر صبح تک جتنے بھی انسان کام کرتا ہے، جن معاملات سے گزرتا ہے، جن لوگوں سے اس کا برتاؤ ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کے تعلقات، دوستیاں اور دشمنیاں وجود میں آتی ہیں، ان سب میں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو اخلاق کہا جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت بہت ہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ صبح سویرے بیدار ہونا، اللہ کے حضور سر جھکانا، پھر اس کے بعد اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ناشتہ کرنا اور سیر کرنا، اور پھر اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ تجارت کرنے والے ہیں، سفر کرنے والے ہیں، تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو، دیانت کو، محبت اور رحمت کو اپنایا. ایک ایک چیز میں آپ کی سچائی اور آپ کا حسن اخلاق اور وہ جو مہربانی اور رحمت ہوتی ہے اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے. ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ رہے. اس کی ایک آسان سی مثال میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میرا معاملہ کسی بھی فرد کے ساتھ ہو، کسی چیز کے لین دین کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، اگر میرے کسی رویے سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اخلاق کی بات تو کر رہا ہوں لیکن وہ اخلاق میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. دودھ بیچنے والا اگر اس میں پانی ڈال رہا ہے، دوا بیچنے والا اگر غلط دوا دے رہا ہے، تعلیم دینے والا اگر صحیح تعلیم کا حق ادا نہیں کر رہا، پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہا، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، بڑے چھوٹوں پر مہربانی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق سے دور ہیں. جبکہ آقا رحمت علیہ السلام آپ کو ہم ربیع الاول کے ایام میں یاد تو کرتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اسے زندگی بھر یاد بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اندر جھانک کے جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے مکہ میں جب آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، لیکن مخالفین بھی جب آپس میں کوئی بات کرتے تو کسی شخص نے بھی آپ کی ذات پر یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ شخص جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اذیت پہنچائی. تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں، اس پر تو بات کی بات ہے، لیکن سب یہ مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، دیانتدار ہیں، صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں، مہربان اور شفیق اور رحمت کرنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. تو
ये गवाही दरहकीकत क्या ज़बरदस्त आपने एलेबरेट किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जो खुसूसियात शामिल रही हैं जो उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाते हैं। जैसा आपने फरमाया कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो दीगर जानवर हैं उनके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त फरमाते थे। ऊँट का वाक़या सलमा हम सब पढ़ते रहे हैं, हम जानते रहे हैं कि उसका मालिक खुराक नहीं देता था। हबीब आसिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 रबीउल अव्वल का ये बाबरकत महीना है। 12 रबीउल अव्वल तक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपसे बारहा इस्तिफादा करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हबीब आसिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कुछ दीगर अहम खबरों का जिक्र कर ले। रिजवान, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का छठा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। मैच का टॉस होगा 7 बजे और एक्शन शुरू होगा 7:30 बजे। PTV स्पोर्ट्स HD पर यह मैच बराह रास्त दिखाया जाएगा। 7 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 3-2 की बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान के लिए खबर यह है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल आइंदा दोनों मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। नसीम शाह कोरोना का शिकार हुए, इनको होटल से घर भेज दिया गया है और आइंदा 2 रोज़ अपने घर में आइसोलेशन करेंगे। पाकिस्तानी टीम आज मैच जीतकर सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। और सलमा, इंग्लैंड अगर आज मैच जीतता है तो इंग्लैंड कम बैक करेगा, 3-3 से बराबर हो जाएगा और फिर परसों का जो मैच है इतवार का वो इस सीरीज का फाइनल होगा। आज के लिए फेवरेट कौन हो सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को होना चाहिए। और आपने जितनी शद्दोमद के साथ कहा कि अगर इंग्लैंड जीतता है तो मुझे लगा कि शायद आपको ये शर्त लगाने लगे कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं खाना खिलाऊंगा और अगर इंग्लैंड जीतेगा तो सलमा खाना खिलाएंगे। एनीवेज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ठीक, इसके साथ ही हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें।